Good morning, my dear student. Today, I am going to continue your class 11th history, chapter 7, changing culture and tradition. But before start this chapter, I would like to remind you that topic which we have read. I think you have remember that we have discussed about that the important topics, the revival of the Italian cities, universities and humanism, contribution of Arab in science and philosophy, aspiration of women's, architecture, art and realism, first printed book, a new concept of humans being humanist view of history, and a very important topic, debate within Christianity. We have discussed on every and each topics in my previous video. There is no need to explain here about that. But here I will give you some information about discuss and debate in Christianity, debate and discuss within Christianity. In this topic, we have also discussed about that the Martin Luther King and their reform in Christianity. He started a new type of sect in Christianity. He want to establish a new approach of Christianity that is different from the old traditions. Martin Luther aware of that. In the Christianity there are so many social evils practiced in society. He was much annoyed about this. He protested all the evils and set up a Protestant. The old traditions Christians, they were called Catholic, and the new traditions Christians who follows the Luther's ideas, they called Protestant. The New Testament become their religious book, and Martin Luther and contemporary other religious reformer, they denied, they opposed, they protest that the social evil practices which was done by church, like indulgence type illegal practices which happen in the Christian society. And according to Bibles, there were so many thoughts which was imposed on the society that was totally illegal. According to Bibles, that earth is in center of universe and every planet, even sun also moving around earth. But actual condition that is different. First time the various astronomers, geographer, scientists, they proved that in the center of our solar system, sun is very important role. Earth is a part of our solar system. Earth is moving around the sun, not the sun moving around earth. Copernicus, Galileo, Kepler, with their practical work, they proved that the hypothesis of Bible was wrong. And there are so many reforms happened during that time, and these were all came out way up of the discuss and debate which happened in Christianity. Today we will read the next topic, Copernican revolution. But before start, I would like to tell you about some timelines which is very important. Why? Because it is related to your modern knowledge also. 1517, Martin Luther
writes the 1905 thesis. 1516, Thomas More, Utopia was published. 1522, Luther translated the Bible into German. 1525, peasants uprising in Germany. 1543, the Indus Vacillus writes on anatomy. Indus Vacillus was first time erect the human body, डिजेक्ट द ह्यूमन बॉडी. उसने पहले बार मानव शरीर को क्या किया, काटा और अंदर की चीज़ों को ओपन किया. इनोटॉमी पर उसने अपनी किताब लिखी 1543 एंड 1559. द गेरहार्ड्स मर्केटर 1559. द एंग्लिकन चर्च established in England with the king queens as its head. 1569, Gerhard Mercator prepare the cylindrical map of the earth. 1582, that is a very important date, when the Gregorian calendar introduced by Pope Gregory XIII. The Gregorian calendar, now that time we are using January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. This calendar was introduced by Gregory XIII in 1582. That calendar is called Gregorian calendar. 1628, William Harvey links that heart with blood circulation. 1673, Academy of Science set up in Persia. And 1687, the Isaac Newton's the Principia Mathematica published. That is a very important timelines. You have to learn. Why? Because the timelines gives us information for the new changing culture and traditions. नए बदलाव, नए परिवर्तनों के बारे में प्रॉपरली इन्फॉर्म करती हैं टाइमलाइंस. आपने देखा किस तरह आइजैक न्यूटन की प्रिंसिपिया मैथमेटिका पब्लिश हुई. आपने ये भी पढ़ा कि थॉमस मोर की यूटोपिया पब्लिश हुई 1516. मार्टिन लूथर ने 1905 थीसिस लिखा, बाइबल का ट्रांसलेट किया. और गेरहार्ड मर्केटर ने एक सिलेंड्रिकल मैप बनाई पूरे पृथ्वी की, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में एक लंबी वायजेस शुरू हुई. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. दैट इज इंडिकेशन ऑफ द चेंजिंग ड्यूरिंग दैट 16th-17th century. It is very important dates. Okay, let us come and discuss the Copernican revolution. The Christians' notion of man as a sinner was questioned from an entirely different angle by scientists. The turning point in European science came with the work of the Copernicus 1543, the contemporary of Martin Luther. The Christians had believed that the earth was a sinful place. The heavy burden of sin made it immovable. The earth stood at center of the universe around which moved the celestial planets. The Christianity notions, जो ईसाइयों की धारणा थी कि मनुष्य बहुत पापी है, इस पर वैज्ञानिकों ने उल्टे अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की. वैज्ञानिकों का इस पर प्रोटेस्ट आया एकदम अलग तरीके से. उन्होंने क्वेश्चन किया, क्या द टर्निंग पॉइंट इन यूरोपियन साइंस केम विद वर्क ऑफ कोपरनिकस. कोपरनिकस के काम से यूरोपियन वैज्ञानिक इतिहास में एक बड़ा बदलाव आया. कोपरनिकस मार्टिन लूथर के कंटेम्परेरी थे. कोपरनिकस वाज द कंटेम्परेरी ऑफ मार्टिन लूथर. क्रिश्चियंस हैड बिलीव्ड दैट द अर्थ वाज सिंफुल. क्रिश्चियंस ने बिलीव कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी जो अर्थ है ये पापों से भरी हुई है, और पापों की अधिकता के कारण ये क्या है, ये स्थिर है. इट इज़ नॉट मूवेबल. ये घूम नहीं रही, ये स्थिर है, और ये पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है. इन बातों को पूरी तरीके से यूरोपियन साइंटिस्ट ने खारिज कर दिया, इनकार कर दिया. दे प्रूव दैट द हाइपोथेसिस विच इज गिवन बाय बाइबल दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट राइट. On the basis of Copernicus' work,
Copernicus asserted that the planet, including the Earth, rotated around the Sun. A devout Christian, Copernicus was afraid of the possible reaction to his theory by traditionalists, the clergyman. For this reason, he didn't want his manuscript De De- De Revolunibus, the rotations, to be printed. On his death bed, he gave it his followers. The his followers, Johannes is Joachim Rheticus. His followers' name was Joachim Rheticus, who published their book, the De Revolunibus. He printed them. That it took time for people to accept his idea. It was much later, more than half century later, in fact, that difference between the heaven and earth was bridged through the writings of the astronomer like Johannes Kepler, 1517 to 1630, and Galileo Galilei, 1564 to 1642. That is the very important thing. Copernicus ने क्या किया? Copernicus ने ये घोषणा कर दी. Copernicus asserted that the planets, including the Earth, rotate around the Sun. कॉपरनिकस ने घोषणा की कि पृथ्वी और पृथ्वी के साथ साथ और भी जो उपग्रह हैं वो सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं. अ डिवाउट क्रिश्चियन कॉपरनिकस वाज अफ्रेड. इवन इन इस घोषणा से कॉपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे और इस बात से भयभीत थे. इस नई खोज से परंपरावादी जो ईसाई है, ट्रेडिशनलिस्ट क्लर्जीमैन क्या होंगे? वो नाराज हो जाएंगे. उनकी नाराजगी से कॉपरनिकस वाज अफ्रेड फॉर द रीजन दैट डिड नॉट वांट टू हिज मैन्युस्क्रिप्ट. और यही वो कारण था जिसके लिए कॉपरनिकस ने अपने आर्टिकल को पब्लिश नहीं किया, प्रिंटेड नहीं कराया. जब वो अपनी मृत्युशैया पे था, डेथ बेड पे था, तो उसके फॉलोअर्स जोचिम रिटिकस ने उसकी आर्टिकल्स द रिवोल्यूबस द रोटेशंस को प्रिंटेड कराई. एक लंबी चर्चा के बाद धीरे धीरे केपलर की इस विचारधारा को लोगों ने स्वीकार कर लिया. एवरीवन एक्सेप्टेड the view, the thoughts which was given by Copernicus that sun is in center of our solar system and earth, including all the planets, they moving around the sun. Gradually everyone accepted that views, but थोड़ा टाइम लगा, 50 साल, 100 साल, 15 years, 100 years, धीरे धीरे इन लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया. The difference between the heaven and earth was bridged through the writings of astronomer like Johannes Kepler. अब यहाँ पे इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा टाइम लगा, आधी शताब्दी लग गई. और यहीं पे समय बीतने के साथ जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, जोहान्स केपलर तथा गैलीलियो गैलीली ने अपने लेखों के द्वारा, अपने आर्टिकल्स के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का जो अंतर था उसे समाप्त कर दिया. केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री में Kepler, the theory of the earth as a part of sun-centered system was made popular by Kepler, the cosmographical mystery. केपलर ने अपने cosmographical mysteries में इस बात को प्रूव किया कि सभी जो प्लैनेट्स हैं वो सन सेंटर्ड हैं, ये सोलर सिस्टम के पार्ट हैं और उसी के चारों तरफ घूमते हैं. Which demonstrated that the planets moved around the sun not in circle but in इलिप्सिस. और उन्होंने ये भी प्रूव किया कि सारे ग्रह जो हैं वो सर्किल में नहीं घूम रहे, बल्कि वो अंडाकार प्रतिपथ पे, वलयाकार प्रतिपथ पे घूम रहे हैं. उनका रोटेशंस एक वलयाकार प्रतिपथ पे है, परिपथ पे, बट इन द इलिप्सिस. गैलीलियो कंफर्म द नोशन ऑफ द डायनेमिक वर्ल्ड इन हिज वर्क द मोशन. The revolutions in science reached its climax with Isaac Newton's theory of the gravitations. और इस तरीके से
जो एलिप्सिस, जो गैलीलियो ने बात की कि जो वृत्ताकार परिपथ पे न घूम करके वो वृत्ताकार सर्किल के पथ पर न घूम करके वो दीर्घ वृत्ताकार एलिप्सिस मार्ग पर परिक्रमा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ द मोशन, गैलीलियो ने अपनी बुक द मोशन में इस मोबिलाइज वर्ल्ड की बात की, गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की। और विज्ञान जगत में इस क्रांति ने आइजैक न्यूटन के ग्रेविटेशन थ्योरी के आ जाने के साथ अपनी पराकाष्ठा को छू लिया, उस पॉइंट को छू लिया जो सत्य था, जो ये प्रूव करता था कि अर्थ में ग्रेविटेशन थ्योरी है। अर्थ इसी ग्रेविटेशनल पावर के कारण अपने धुरी पे और अपने परिपथ पे घूम रही है। इट मीन्स रिवोल्यूशन एंड रोटेशन बोथ द रीजन ऑफ द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी की गति होती है कि अपने धुरी पे भी गति करता है वो, और सूर्य की परिक्रमा भी करता है। इस तरीके से आइजैक न्यूटन, केपलर, गैलीलियो और कोपरनिकस के रिवोल्यूशन से ये बात प्रूफ हुई कि बाइबल की जो बातें थी वो पूरी तरीके से गलत थी। रीडिंग द यूनिवर्स, एंड दे स्टार्टेड द रीडिंग द यूनिवर्स। गैलीलियो once remarked that the Bible that light the road, the heaven, does not say much on how the heaven work. The work of these thinkers showed that the knowledge, as distinct form of belief, was based on the observation and experiments. Once these scientists had shown they were experiments and investigation into what came to be called the physics, chemistry, and biology expanded rapidly. Historians were to label this new approach to the knowledge of man and nature the scientific revolutions. Galileo once remarked that the Bible, that light of the road to heaven, does not say much on how the heaven works. गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की थी कि बाइबल जिस स्वर्ग के मार्ग को आलोकित करता है, जिस स्वर्ग के मार्ग को प्रकाशित बताता है, वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है, इसके बारे में कुछ नहीं बताता। इन विचारकों ने इस बात पे, ये बात सबको बताई, इस एस्ट्रोनॉमर्स ने, इन साइंटिस्ट ने ये बात सभी को बताई, अवेयरनेस जगाया कि विश्वास से हटकर अवलोकन और प्रयोग पर आधारित ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। इट मीन्स जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, दैट इज द एक्चुअल नॉलेज, द रिलीजियस नॉलेज दैट इज नॉट द एक्चुअल नॉलेज, दैट इज प्रूव्ड बाय द एस्ट्रोनॉमर, दैट इज प्रूव्ड बाय द हिस्टोरियन, कंटेम्पररी हिस्टोरियन। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज की का रास्ता दिखाया, वैसे वैसे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे विज्ञान के क्षेत्र में अनेकों प्रयोग और अन्वेषण हुए, और बहुत तेजी से नॉलेज, दे एक्सपेंडेड द रैपिडली नॉलेज in the physics, chemistry and biology, and they try to prove the scientific approach of the religion. That is the very important thing, that is the change in the religion. The religious thoughts nowadays, until that time, it was logically proved by the scientific views. They tried to aware that everyone to put the questions against the superstitions. सभी को ये अधिकार है कि वो सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट क्वेश्चन करें। ये सारी बातें ये लोग कर रहे थे। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। The historians were to label this new approach to knowledge of man and nature the scientific revolution. Here the question arises, what is the scientific revolutions? You can easily explain that the knowledge which was came out from the scientists, astronomer, what they practically proved, what is happening actual, that is scientific knowledge. It was labeled by the historians that knowledge, man and nature, that scientific revolutions. Consequently, in the mind of the
skeptics and the non-believers, God began to be replaced by nature as a source of certainty. Even those who retained their faith in God started talking about a distant God who does not directly regulate the act of living in the material world. Such ideas were popularized through scientific societies that established in the new scientific culture in the public domain. The Paris Academy, established in 1670, and the Royal Society in London for the promotion of the natural knowledge, formed in 1662, held lecture and conducted experiment for the public viewing. परिणाम स्वरूप जो जो परिवर्तन हुए थे, इतिहासकारों ने जिसे नया वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया था, न्यू साइंटिफिक रिवोल्यूशंस कहा था, इसके रिजल्ट के फलस्वरूप जो संदेहवादी थे, consequently in the mind of the सस्पेक्टिव एंड नॉन बिलीवर्स, जो संदेहवादियों और नास्तिकों के मन में सारी जो सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति का ईश्वर का स्थान लेने लगे। यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे जो भौतिक दुनिया में, जो इस फिजिकल वर्ड्स में नहीं है बल्कि इससे दूर है। वो भौतिक दुनिया में जीवन के प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता। वो ऐसा मानने लगे थे कि गॉड इन चीज़ों से परे है, बियॉन्ड दैट ऑल द एक्टिविटीज इज हैपनिंग इन इंडिया, नॉट इंडिया, हैपनिंग इन वर्ल्ड यूनिवर्स, गॉड उन सबसे परे है। भारत में, दुनिया में, ब्रह्मांड में जो घटनाएं घट रही हैं, भगवान उन सबसे परे है, उन सबसे अलग है। वो इस बात पे विश्वास करने लगे। इस नए नए प्रयोगों के द्वारा इसको प्रूव किया साइंटिस्ट ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने, और इसको एक नया नाम दिया हिस्टोरियंस ने, साइंटिफिक रिवोल्यूशन। इस प्रकार विचारों को वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक नई संस्कृति की स्थापना हुई। 1617 बनी पेरिस एकेडमी और 1662 में बनी वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों को जानकारी के लिए बहुत सारे क्या किए, हेल्ड द लेक्चर एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स फॉर पब्लिक व्यूइंग। ये दोनों एकेडमी, लंदन एकेडमी, रॉयल सोसाइटी, और जो पेरिस में एकेडमी थी, पेरिस एकेडमी जो 1617 और 1662 में बनी थी, इन लोगों ने बहुत सारे व्याख्यान का, बहुत सारे जो आर्टिकल्स थे उनको पब्लिश कराया, लेक्चर्स का आयोजन कराया, व्याख्यानों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया और ऐसे प्रदर्शन करवाए जिससे लोगों को वास्तविक ज्ञान का पता चल सके। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज was therefore European Renaissance in the 14th century. Let us now reconsider the concept of the Renaissance. Can we see this period as a marking sharp breaking with the past and the rebirth of the ideas from Greek Roman traditions? Was the earlier period 12th and 13th century a time of darkness? अब हम Renaissance की अवधारणा पर विचार करेंगे। एक बार फिर we are going to discuss about that the meaning of Renaissance again. क्या कह सकते हैं कि इस काल में अतीत के साथ जो विच्छेद हुआ और यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का जो रीबर्थ हुआ, क्या इससे पहले के काल 12th और 13th सेंचुरी में नहीं हुआ था? क्या 12th और 13th सेंचुरी का काल अंधकार का काल था? The recent writers like Peter Burke of England have suggested that the Burckhardt was the exaggerating the sharp difference between this period and the one that preceded it by using the term Renaissance, which implies that the Greek and Roman civilizations were reborn at the time and that scholars and the artists of the period submitted the pre-Christian world view for the Christians on both arguments were exaggerated. Scholars in the earlier centuries had been familiar with Greek and Roman cultures, and religion continued to be very important part of the people's life. अब हम इंग्लैंड के पीटर वर्क
जैसे हाल के लेखकों ने सुझाव दिया कि बर्कहार्ट का ये विचार अतिशयोक्तिपूर्ण है कि बर्कहार्ट कहते हैं कि इस काल में इससे पहले के कालों में फर्क को कुछ बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा था। ऐसा करने के लिए पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, रेनेसांस वर्ड का यूज किया जा रहा था। बर्कहार्ट क्लेम दैट कि पुराने समय के और नए समय के बीच जो वर्णन हो रहे थे वो हाइपरबोलिक थे, बढ़ा चढ़ा के किए जा रहे थे। बर्कहार्ट इस काल और पिछले काल में जो फर्क थे उनका विरोध करते हैं। ऐसा करने के लिए उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया और इस शब्द में जो अंतर्निहित है कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं सेंचुरी में रीबर्थ हुआ और समकालीन विद्वानों और कलाकारों ने ईसाई विश्व दृष्टि की जगह पूर्व ईसाई दृष्टि का प्रचार प्रसार किया। दोनों ही तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण थे, दोनों ही तर्क जो दिए गए थे वो सही नहीं थे। पिछली सेंचुरीज में विद्वान यूनानी और रोमन संस्कृतियों से परिचित थे और लोगों के जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। ये कहना पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनशीलता का काल था। इसके विरुद्ध जो मिडिल एरा था वो अंधकार का काल था, इसमें किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ था, जरूरत से ज़्यादा ही सरलीकृत कर दिया गया है। इट इज़ नॉट द क्लियर फैक्ट कि जो पुराना एरा था वो कम डेवलप था, मॉडर्न एरा काफ़ी डेवलप हुआ। ये बातें, दोनों बातें पूरी तरीके से सही नहीं है। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व 12th और 13th सेंचुरी में पाए जा सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है कि 9th सेंचुरी में फ्रांस में इस प्रकार के साहित्यिक कलात्मक विचारधारा का विकास हो रहा था। इट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय सम हिस्टोरियन दैट इन 9th centuries in France there had been similar literary and the artist blossoming. The culture changing the Europe of time were not shaped only by the classical civilizations of Roman and Greek. The archaeological and the literary recovery of the Roman culture did create a great admiration of that civilizations. But technologies and skills in Asia had moved far ahead of what the Greeks and Romans had known. Much more of the world had become connected, and the new techniques of navigation enabled people to sail much further than had been possible earlier. This expansion of Islam and Mongols conquest had linked Asia and North Africa with Europe, not politically but in terms the trade and learning skills, the Europeans learning not just from the Greeks and Romans but from India, from Arabia, from Iran, from Central Asia and China. These debates were not acknowledged for a long time because when the history of this period started to be written, the historians saw it from European centered viewpoints. यूरोप में उस समय सांस्कृतिक बदलाव और रोम और जो ये पुनर्जागरण काल की गतिशीलता और कलात्मक सृजनशीलता की बात करते हैं, ये हो रहा था 9th सेंचुरी में। 9th सेंचुरी में ही इतिहासकारों ने इनको देखा। कुछ इतिहासकारों का मत है कि जो चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशंस को 14th सेंचुरी में दिखाया जा रहा है, 15th सेंचुरी में दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। 9th सेंचुरी में ही इनके डेवलपमेंट, इनकी चेंजिंग का फेज शुरू हो चुका था। यूरोप के इस समय आए जो कल्चरल चेंजेस थे उसमें रोम और यूनान की क्लासिक की जो सिविलाइजेशंस थी उसका महत्वपूर्ण स्थान था या नहीं, इन चीज़ों पे भी विचार करना चाहिए। रोमन कल्चर के जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, जो लिटरेचर मिले, जो उनका रिवाइवल हुआ, इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव हमें दिखाई देते हैं। लेकिन एशिया में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आपस में संबद्ध हो चुका था। हमें नेविगेशन सिस्टम जैसी नई तकनीकी जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ा, इन लोगों के लिए पहले की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों में लॉन्ग वॉयजेज स्टार्ट कर दिए थे। जल यात्राएं, समुद्र यात्राएं शुरू हो चुकी थी। इस्लाम के एक्सपेंशन, मंगोलों के विजयों ने एशिया, उत्तरी अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए भी आपस में जोड़ दिया। यूरोपियों ने न केवल यूनानियों और रोमवासियों से सीखा बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चाइना से भी इन लोगों ने बहुत कुछ सीखा।
बहुत लंबे समय तक इनकी रीढ़ को स्वीकार नहीं किया गया, इनके कंट्रीब्यूशंस को, इट मीन्स एशियाई कंट्रीज़ के कंट्रीब्यूशंस को यूरोपियन कल्चर, यूरोपियन हिस्ट्री में एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर बाद में एक लंबे समय के बाद इतिहास लिखने की प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई, तब इतिहासकारों ने इसका यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण को सामने रखा कि ये सही पूरी तरीके से नहीं है कि जो रिवाइवल हो रहे थे वो सिर्फ यूरोमन और ग्रीक की ही वजह से नहीं थे, बल्कि एशियन कंट्रीज़ के इंटरेक्शन से भी थे। यूरोपियों ने बहुत कुछ ईरान, अरब, हिंदुस्तान, चाइना से भी सीखा। ये बातें प्रूफ होने लगी और इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उसमें धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दोनों अलग अलग क्षेत्र बनने लगे। जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य सरकार के कार्य क्षेत्र की दो भूमिका औपचारिक धर्म से संबंधित थी और निजी क्षेत्र में परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म था। व्यक्ति एक वर्ग का सदस्य ही नहीं था, बल्कि अपने आप एक स्वतंत्र व्यक्ति था। एक कलाकार किसी संघ या गिल्ड्स का सदस्य मात्र ही नहीं था, बल्कि वो अपने हुनर के लिए भी जाना जाने लगा था। 18वीं सेंचुरी तक आते आते व्यक्ति की पहचान उसके पॉलिटिकल अप्रोच से होने लगी और यहाँ पे बदलाव का पूरा दृष्टि दिखाई देती है। इन विश्वासों के साथ प्रत्येक व्यक्ति एक समान राजनीतिक अधिकार एंजॉय करने लगा था और इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि लैंग्वेज के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनानी शुरू की थी। पहले थोड़ा कम आंशिक रूप में ये रोमन साम्राज्य और बाद में लैटिन भाषा और ईसाई धर्म से जुड़ा यूरोप अब अलग अलग राज्यों में बंटने लगे थे और इन राज्यों के आंतरिक जुड़ाव के कारण समान भाषा का होना था। इट मीन्स दिस इज द वेरी वास्ट हिस्ट्री। इफ यू विल रीड देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। Any important changes that did happen in this period was that gradually the private and public the spheres of life began to become separate. The public sphere meant the area of government and of formal religion, and the private sphere including the family and the personal religion. The individual had private as well as public role. He was not simply a member of one of three orders. He was also person in his own rights. An artist was not just a member of guilds, he was known for himself. In the 18th century, this sense of the individual would be expressed in the political form, in the belief that all individuals had equal political rights. Another development was that the different regions of Europe started to have the separate sense of identifier based on language. Europe, earlier united partly by the Roman Empire and later by the Latin and Christianity, was now dissolving into a state, each united by the common language. Another development was that the different religions of Europe started to have their separate sense of identity. It means कहता है कि इस काल में एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लैटिन भाषा और ईसाई धर्म द्वारा जुड़ा यूरोप अब अलग अलग राज्यों में बंटने लगा। इन राज्यों के आंतरिक जुड़ाव का कारण समान भाषा का होना था, एक इक्वल लैंग्वेज का होना था। इट मीन्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज यूरोप अर्लियर यूनाइटेड पार्टली बाय द रोमन एम्पायर एंड लेटर बाय द लैटिन एंड क्रिश्चियनिटी was now dissolving into states each united by common language. So इस प्रकार हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से नए कल्चर के बदलाव हो रहे थे, नए नए चेंजेस आ रहे थे और फिर जो एक रेनेसांस की बात आई, जो ये कहा गया कि जो कल्चर और ट्रेडिशन सिर्फ 15th-16th सेंचुरी में ही बदले, इस पर बात के इतिहासकारों ने क्वेश्चन किया। उन्होंने ये प्रूव करने का प्रयास किया कि 9th सेंचुरी से ही फ्रांस में हमें डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, बदलाव की स्थिति दिख रही है। लोग लंबी समुद्री यात्राएं करके दूसरे देशों से कनेक्ट हो रहे हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ये सीख रहे हैं और बाद में
कंक्लूड करते हुए ऑथर बताता है कि इस पूरे फेज ड्यूरिंग 15th to 18th century we have seen the vast changes in the culture and traditions of the Europe, and that change introduced Europeans as a new society, developed society. आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर.